تک پہنچا ایک مثال ہے. اب آئیے میں اس مولوی سیف الاسلام کی طرف چلتا ہوں. مولوی سیف الاسلام دیکھو غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل قرآن سے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لوگوں نے کہا سبحان اللہ, کہا سنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتى, اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن, اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. قال بلا, ابراہیم نے کہا اے اللہ کیوں نہیں, کیوں نہیں, لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لیطمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے, تو مردوں کو زندہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو, ذبح کر لو. کیا کر لو, ذبح کر لو, اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے گوشت کو, ہڈیوں کو, گوشت کو, پروں کو, ٹانگوں کو, سب کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دو, مکس کر کے چاروں جانب پہاڑوں کے اوپر رکھ دو, الگ الگ رکھ دو ان کو. ثم ادعوہن, اے ابراہیم پھر ان کو تم آواز دے کر پکارو, تم ان کو پکارو. یاتینک سعیا, وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی, زندہ ہو کر دوڑتی ہوئی آئیں گی. ابراہیم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چڑیوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کیے, بوٹیاں بوٹیاں کری, خلط ملط کری, چاروں پہاڑوں پر ڈال کر کے پھر ان کو پکارا, پھر ان کو پکارا اور وہ دوڑتی ہوئی آ گئی. سیف الاسلام دلیل لے رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں مجھے ایمانداری سے بتلاؤ, ایمانداری سے بتلاؤ, ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ چڑیاں زندہ تھیں یا مردہ تھیں؟ اب اتنا کہنا تھا تکبیر, سب کی سمجھ میں آ گیا. شیطان نے وہ سوچا آگے سن, ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ زندہ تھیں یا ذبح ہونے کے بعد بھی زندہ تھی؟ ذبح ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ان کے اپنے پروں کا بھی حساب و کتاب نہیں, سب مکس. اور پکارا انہوں نے, اور پکارنے کے بعد ابراہیم کو حکم ہوا, ابراہیم کو حکم ہوا, غور سے سنو, ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ثم ادعوہن, پھر ان کو پکارو. اے ابراہیم ان مردہ چڑیوں کو پکارو, ان مردہ چڑیوں کو پکارو. پوچھو ان وہابی مردودوں سے, مردوں کو پکارنا اگر شرک ہوتا تو اللہ ابراہیم کو شرک کی دعوت دے رہا ہے, اور یہ ضرور دیتا اللہم صلی اللہ, اور اس پہ نعرے لگتے. اب بتاؤ کتنی پیاری دلیل ہے یہ, ہے دلیل کی نہیں دلیل, مضبوط ہے, قرآن کی ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا اس پر؟ یہ میں کبھی پوچھوں گا, ابھی میں جواب نہیں دوں گا, ابھی میں جواب نہیں دوں گا. ایسے ایسے شیاطین, ایسے ایسے شیاطین ہدایت اور توحید اور سنت کے اسلام کی راہوں میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. شراب کھانے میں نہیں, میں کھانے میں نہیں, میں کدے میں نہیں, رنڈی کے طوائف کے کوٹوں پہ نہیں, روڈوں چوراہوں پہ نہیں. کہاں بیٹھوں گا؟ جنت کا جو راستہ صراط, اس پر بیٹھوں. اب اس پر بیٹھے گا جنت کے راستوں پر, تو بتاؤ وہ کس کی شکل میں بیٹھے گا؟ جنت کے راستے پر گروے بستر پہن کے بیٹھے گا. آپ جائیں گے وہاں ہاتھ چومیں گے ان کے, جوگی رمانا مانا لے کے بیٹھے گا, ڈھول تاشے بجاتے ہوئے بیٹھے گا, شراب کی بوتلیں لے کے بیٹھے گا. بولو جنت کا راستہ ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ہیں
उन तमाम को लेकर के जन्नत के रास्ते में बैठेगा। वो तो उस शक्ल सूरत में बैठेगा जिस शक्ल सूरत में आप अपने हादी और अपने मुर्शिद और अपने रहबर को देखना और कायद को देखना चाह रहे हैं, बल्कि उससे भी आला तस्वीर लेके बैठेगा वो, जहां शर्म आएगी, बड़े बड़े दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, ऐसी शक्ल सूरत लेके बैठे। तर दामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। हम तो ऐसे पाक दामन होके वो बैठेगा कि फरिश्तों को भी हया है, शक हो जाए यार ये इतना बड़ा शैतान हो सकता है। अल्लाह तेरी रहमतों पे कुर्बान, तेरे कुर्बान पर कुर्बान, तेरे कुरान पर कुर्बान। ए मेरे नबी, उम्मत की तरफ से तुम्हारे ऊपर करोड़ा करोड़ जमीन के जर्रों आसमान के सितारों से भी ज्यादा दरूद और सलाम नाज़िल हो, जिन्होंने हमें एक एक बात बता दी है, अल्लाह की कसम एक एक बात बता दी है इन फितनों की और इन तमाम सब फितना घरों की। तो अजीजों, ये हश्र कब होगा कि मुर्दों को पुकारना। अब कोई तुमसे कहे, अब सुनो आगे, अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने मुर्दों को पुकारा, तुम कहो कि मुर्दों को पुकारना शिर्क। अब अगर तुमसे कहे कोई कि मुर्दों को पुकारना शिर्क है, तुमसे कह दो हम क्या जाने शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, हम तो बराहीमी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हम किसको जिंदा कर रहे हैं? बराहीमी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। मुर्दा चिड़ियों को पुकारना अगर शिर्क नहीं है तो मुर्दा वलियों को पुकारना शिर्क कैसे हो सकता है? पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। चिड़ियों और वलियों का तमाशा देखा, काफिया बंदियों का। यह है सैकल इस्लाम की दलील है। हमने कहा खैर, ये नतीजा हश्र होता है उस वक्त जब आदमी अपने मनमानी कुरान की तफसीरें और कुरान के माने और मफहूम को पढ़ता है, समझता है और लोगों तक पहुंचाता है। ये दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होने वाले दुआत हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा जो तुम्हारी जुबान बोलने वाले तुम्ही में से होंगे, लेकिन जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होकर के जहन्नम की तरफ दावत देने वाले होंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कुरान और सुन्नत को समझना है तो कैसे समझना है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा अगर उस तरह से ईमान लाए, ऐ मेरे नबी, लोग अगर उस तरह से ईमान लाएं जिस तरह आपके नबी के सहाबा ईमान लाए, जिस तरह आपके नबी के सहाबा का कैरेक्टर, जिस तरह आपके नबी के सहाबा के अमाल हैं, जिस तरह आपके नबी के सहाबा के अखलाक हैं, मामलात हैं, ईमान और अकीदे हैं, अगर लोग उस तरह से ईमान लाएं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ, तो वो लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, वो लोग जन्नती होंगे, वो लोग सहाबा के साथ जन्नत के रास्ते पर होंगे। ये मनहज है जो अल्लाह बता रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी कर दी थी। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। वइयाकुम, अब पूरी तफसील है, यह मनहज है। नबी ने हमको बताया कि हमें कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, पढ़ना है, तो उस तरह से जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल ने, अल्लाह ने अपने नबी को और रसूल ने अपने सहाबा को समझाया, हमें भी उसी तरह से ईमान रखना है, उसी तरह से अकीदा रखना है। छोटा सा जवाब दे करके, ताकि आपको उलझन ना हो कि रबानी साहब ने बताया नहीं, जवाब नहीं दिया, उसका जवाब यही है जो मैंने अभी बताया कि अगर ये कुरान से मुर्दों को पुकारना अगर ये जायज होता तो हजरत सैयदना अबू बकर के बारे में बताओ कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद या जिंदगी ही के अंदर कहीं गायब और हाजिर अल्लाह के नबी को पुकारते रहे, गायब में पुकारते रहे कि अल्लाह के नबी अब तो उठिए, अब तो हमारी मदद कीजिए, पूरा मदीना बागी हो गया है, मदीने के चारों तरफ इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है, ए अल्लाह के नबी खतरा है सहाबा के ऊपर, उठिए, सुनिए उम्मत की क़यादत की। पुकारा हजरत अबू बकर ने, एक दलील दे दो। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को मदद के लिए पुकारा, हजरत उमर, हजरत उस्मान ने किसी को मदद के लिए पुकारा। नबी के पहलू में घर के अंदर नबी मस्जिद नबी के करीब ही आपको 50 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया, आपके सीने पर चढ़कर आपको मजलूमाना तौर पर मदीने की धरती पर शहीद कर दिया गया, जो और आपको आपकी बीवी को आपको शहीद कर दिया गया।
हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, पुकारा मदद के लिए? क्यों क्यों नहीं? ये मनहज है। सहाबा ने किसी को नहीं पुकारा, अबू बकर ने किसी को नहीं पुकारा, खुद अपने नबी को नहीं पुकारा, उमर ने अबू बकर को नहीं पुकारा, उस्मान ने उमर को नहीं पुकारा, हजरत अली ने उस्मान को नहीं पुकारा, किसी को नहीं पुकारा किसी ने। तो तुम कहां से ये माना और मतलब लेके आ रहे हो? ये तुम्हारे अपनी उसी मुशरिकाना और बिदातियाना फिक्र और अकीदे की तरवीज और नस्ल की सोच है, जिसके जरिए तुम उम्मत के अंदर अपना बनाया हुआ खुद साख्ता धर्म, अपना बनाया हुआ अहलुस सुन्नह के नाम पर लेबल लगा करके कुफ्र और शिर्क को उम्मत के अंदर फैलाकर उम्मत के लोगों को गुमराह कर रहे हो। इसलिए यह अकीदा फासिद है, इसलिए यह अकीदा गलत है, यह अकीदा कुरान के खिलाफ है, यह अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ है और सहाबा के भी खिलाफ है। बात समझ में आई? एक जवाब दीजिए। दूसरा जवाब इसी में, झूठ जब आदमी बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नुक्ता छोड़ देता है जहां से आप उसे पकड़ के घसीट सकते, क्योंकि झूठ जो बोलता है उसको अकल नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे देश में भी झूठ का राज है, झूठ बोलने वालों की कसरत है और झूठ बोलने वाले सरदार बने हुए हैं, हमारे हुक्मरान बने हुए, जो जितना ही झूठ बोले वो उतना ही बड़ा है। जहां जाए वही फेंक फाक, वही लफाजी, वही झूठ। बस अल्लाह ताला ऐसे झूठों से हमें महफूज रखे और हमारे देश को भी झूठों से महफूज रखे। ऐसे गपबाज और झूठे और फेंकुओं से अल्लाह ताला हमारे देश की हिफाजत फरमाए और ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, या अल्लाह उन्हें नीस्त नाबूद फरमाए। तो उसने भी कहा क्या? मुर्दा चिड़ियों को पुकारना, मुर्दा चिड़ियों को पुकारना अगर शिर्क नहीं तो मुर्दा वलियों को पुकारना शिर्क। तो उससे बहुत तेजी दो बातें यहां अब टकराती हैं। वहां मुर्दा चिड़ियों को पुकारने की बात है, तुमने कहा वलियों को। किसको? तो तुम तो कहते हो वली जिंदा है, तुम तो कहते हो वली जिंदा है। तो या तो वो जिंदा है और या मुर्दा है। नहीं समझ में आता है? तो तेरी वो बात गलत है, ये सही है, या ये गलत है वो सही है। दोनों में से अकीदा सही कर ले, तेरा जवाब हम खुद दे देंगे, वही उसका जवाब। खैर, बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको मिसाल दूं। तो अर्ज करने का मतलब यह है, बहरहाल अकीदा सही कैसे होता है और गलत कैसे होता है, वो समझ में आ गया। तो ईमान ठोस हो, मजबूत हो, यह अकीदा सही होने की दलील है, अलामत कुरान और सुन्नत के मुताबिक, सहाबे कराम के मुताबिक। सहाबे कराम ने कभी कोई मजार दरगाह नहीं बनाया, कहीं कोई शद्दा आलम चबूतरा। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं, अपने मुसलमान भाई बहनों की बात कर रहा हूं। सहाबे कराम ने किया हो तो हमको भी बताओ, हम भी करने के लिए तैयार नहीं। कर झगड़ा न करो, गुस्सा न करो, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह एक है, हमारा भी अल्लाह एक है, रसूल एक है, अकीदा है, सब कुछ एक है। फिर हम एक क्यों नहीं है? क्यों झगड़ा करते हो? क्यों फसाद करते हो? क्यों लड़ाई करते हो? मत करो लड़ाई, झगड़ा मत करो, दलील दे दो, हमारा सर झुकेगा दलील पर। तुम एक नहीं, तुम अल्लम गल्लम बाबी बाबा लाके हमको दलील दोगे, वो हम नहीं मानते, वो हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं, क्योंकि ऐसे मक्कार और अय्यार हम देख चुके हैं। हमको ऐसे मक्कारों के दलाइल की जरूरत है, हमें रब के कुरान की और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जरूरत है। अजीजान मोहतरम, ये मनहज रखोगे इंशाअल्लाह तो अकीदा, खुलासा इस्लाम यह है कि अकीदा आपका ठोस और मजबूत। नंबर 2, आपका अमल। अकीदे के बाद, ईमान के बाद आपका अमल भी मजबूत होना चाहिए, पैहम होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। अमल आपका हजरत सहाबा वही बात है, उसी तरह से जिस तरह से अमल सालेह वो अमल हो। दो अमल की भी तो अमल गलत अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। चोरी चकारी करोगे तो बुरा है, अमानत और ख्याल अमानतदारी से रहोगे, सच बोलोगे तो यही अमल क्या है? अच्छा है। तो इस्लाम अच्छे अच्छे अमाल करने का हुक्म देता है। अच्छे अमाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ो, साहबे कराम की सीरत तैयबा पढ़ो, कभी झूठ न बोलो, चुगली न करो, गीबत न करो, किसी के माल और जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा न करो, किसी को नाजायज तरीके से गाली गलौज मत बको, किसी को कत्ल खून मत करो, किसी की 1 इंच जमीन भी अगर है तो इसी दुनिया के अंदर उसको वापस करो, किसी को सताओ नहीं, किसी को बुरा भला मत कहो, सबके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। यही मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बात लंबी ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतने बड़े अल्लाह से डरने वाले अल्लाह अकबर कि मस्जिद नबी के अंदर तहज्जुद के लिए उठा करते थे। आप उठे और मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, आपका अंधेरा था, बिजली तो थी नहीं, चिराग जलते थे, वो अंधेरा हो था कमरे में, मस्जिद नबी के अंदर दिखाई नहीं दिया, आपका कदम मुबारक किसी सहाबी सोए हुए थे, कदम मुबारक से टकरा गया तो उसने कहा अंधे हो नजर नहीं आता। उसको भी क्या मालूम कि कौन आदमी, कहा अंधे हो नजर नहीं आता। आवाज आई माफ करना मैं अंधा नहीं हूं लेकिन अंधेरा है, ये पैर टकरा गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो होश में आ गए, अल्लाह के नबी की आवाज है ये, तो उठ के बैठ गए, कहने कि अल्लाह के नबी जहे नसीब आपके कदम कदम पे क्या सर पे रखे तो हम तो समझेंगे कि हम साझेदार हो गए। अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दिए, मेरी जुबान से इतना खतरनाक जुमला निकला। आपने कहा कोई बात नहीं, तुम भी हक पर थे, तुम्हारे पैर को हमारे पैर से अजियत पहुंची, नमाज पढ़ी आपने, फजर पढ़ाई, उस सहाबी को बुलाया, कहने लगे भाई मेरा पैर तेरे पैर से टकराया था, मुझे माफ किया। कहा अल्लाह के नबी माफ, अल्लाह माफ कर। कहने लगे नहीं, मैं उस वक्त समझूंगा तुमने माफ किया जब तुम मेरे साथ घर में चल गए, मेरे साथ नाश्ता करोगे। अल्लाह के नबी बस हो गया, मैंने माफ कर दिया। कहने लगे ना चलो हमारे साथ। आप उनको लेके आए, घर पे नाश्ता करवाया, खिलाया पिलाया, कहा माफ किया। कहा अल्लाह के नबी दिल से माफ किया, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे दिल से। कहने लगे नहीं, मेरी कुछ बकरियां फलानी वादी के अंदर, कुछ बकरियां हैं जो मेरी हैं, मैं उन्हें तुझे बतौर हदिया दे रहा हूं, जा करके तुम उन बकरियों को वहां से पूरे हाजिर कर लो, तब मैं समझूंगा कि तुमने माफ किया। मैं अल्लाह से डरता हूं कि कहीं कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इसका हिसाब ले। अल्लाह अकबर, यह नबी कायनात का हाल था, यह मुअल्लिम कायनात का यह हाल था, हमारे मुरब्बी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था कि जरा जरा सी बात पर आप अल्लाह का खौफ इतना महसूस करते थे। और आज पैर से पैर टकराना तो बड़ी दूर की बात रही, पूरा छुरे सीने में भौंक करके माफी की बात आप कर लें, उल्टे मुकदमे करवाते हो, उल्टे एक दूसरे को फंसाते हो, झूठी गवाहियां देते हो, चोरियां करते हो, और न जाने कैसी कैसी मुसलमान हरकतें करता है, और उसके बाद कहता है जी मैं मुसलमान हूं। क्यों है ऐसे मुसलमानों के ऊपर अफसोस है, ऐसे किरदार के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस है। फिर इल्जाम देते हो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं हो सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस इस्लाम को उतारा है, अल्लाह फरमाता हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जिसकी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा कभी बुझने वाली नहीं है। युरीदूना अन युत्फ़िउ बिअफ़वाहिहिम युरीदूना अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपने फूंकों से इस्लाम के इस चिराग को गुल कर दें। ये इस्लाम के चिराग को गुल नहीं कर सकते, अल्लाह इसे गालिब करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम सही हो जाएं, हमारा किरदार हमारा अमल सही हो जाए, हम अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैरोकार हो जाएं, हमारा अमल सही हो जाए, नमाज रोजा हज ज़कात अखलाकियात के मामले में। अल्लाह अकबर, हजरत सफिया हजरत हफ्सा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा हजरत सफिया जो यहूदियों के सरदार की बेटी थी, मुसलमान हुई, उनके और उनसे अल्लाह के नबी ने शादी की, कद में उम्मुल मोमिनीन थी, मोमिनों की मां अल्लाह ने बनाया, कद में थोड़ी छोटी थी। किसी मौके पर हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन की जुबान से ये जुमला निकल गया, अरे वो ठिगनी है, यहूदन की बेटी वो ठिगनी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा वल्लाहि लक़द कुल्ति कलिमतन, अल्लाह की कसम आयशा तुमने एक जुमला ऐसा कहा है, अगर समंदर के मीठे पानी में भी इस जुमले को डाल दिया जाए तो इस जुमले की तलखी से और इसकी कड़वाहट से पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। तुमने क्या बात की थी? अपनी लाडली बीवी हजरत आयशा को आपने तंबीह की, और आज अपनी जुबानों को स्टेन गन बनाकर एक दूसरे के खिलाफ, बीवियों के खिलाफ, बीवियां शोहरों के खिलाफ, उनके खानदान को वो उनको गालियां गलूज न जाने क्या क्या हम कहते और सुनते रहते हैं। मुसलमानों ये हमारा किरदार नहीं है, हम अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, किरदार को दुरुस्त कर लें, मामलात को दुरुस्त कर लें। हमारे मामलात कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर होने चाहिए, सिर्फ आमीन रफुल यदैन नहीं, नमाज सिर्फ कुरान सुन्नत के मुताबिक हम जरूर पढ़ते हैं, और पूरा किरदार हमारा शैतान के किरदार के मुताबिक, नबी की सीरत के मुताबिक नहीं। इसलिए अगर आप वाकई अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो याद रखो अपने अमल को बिदअत से मुलव्विस ना करो, अपने ईमान को
शिर्क से मुलविस ना करो, अपने अखलाक को बद अखलाकियों की गंदगियों से दूर रखो। इंशाअल्लाह ये खुलासा है इस्लाम का, ये निचोड़ है कि हमारा अकीदा ठोस और मजबूत होना चाहिए। तौहीद के अंदर कोई समझौता नहीं, तौहीद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, तौहीद में कोई भी किसी से मुफाहमत नहीं। अमल भी हमारा नबी की सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए, बिदात की कोई गुंजाइश नहीं। अखलाक भी हमारा साफ और सुथरा होना चाहिए। यह खुलासा है, निचोड़ है इस्लाम का। अल्लाह हमें इसके मुताबिक रहने और सहने की तौफीक अता फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाप था। इंशाअल्लाह तबारक तआला ये बेशक पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, पूरे भारत में जाना चाहिए कि लोगों को, ताकि लोगों के दिमागों से गलत फहमियां दूर हो कि इस्लाम जमाने में मिटने के लिए नहीं आया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे, जितना कि दबाओगे। इंशाअल्लाह तबारक तआला इस्लाम जिंदा रहेगा, मुसलमान बाकी रहेंगे, अल्लाह के घर बाकी रहेंगे, दुनिया बाकी है तो मुसलमानों के लिए पूरी रूए जमीन मस्जिद है। बोलो बिल्डोजर वालों से कि पूरी जमीन को खोदो बिल्डोजरों से। है कितने बिल्डोजर लगा, मस्जिदें तुम तोड़ो नहीं, जमीनें खोद डालो, तुम जमीनें खोद डालो। हमारी नमाजें समंदरों में होंगी इंशाअल्लाह। हमें कभी गिराने की कोशिश नहीं करना, बस मुसलमानों अपने किरदार को हम समझें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत हैं लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सवाल और जवाब की नशिस्त 15 मिनट है, इंशाअल्लाह तबारक होगी। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारे अंदर जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफायाबी अता फरमाए, जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्जों को दूर फरमाए, जो इंतकाल कर चुके अल्लाह उन्हें करवत और नसीब फरमाए। अल्लाह के साहब औलाद हैं, उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक बनाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह उनके बोझ को हरी फरमाए, उनके आंगनों में किलकारियां करे। अल्लाह ताला जो गरीब हैं उन्हें मालदार बनाए, जो मालदार हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए। ए अल्लाह, हमारे एक बड़े आलिमों में से एक आलिम उस्तादुल असातिज़ा मौलाना अबुल आस वहीदी साहब, वो अभी बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी शिफाए कामिल अजर अता फरमाए, और जितने भी उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन और आम लोग भी, जितने भी उम्मत के मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।